Welcome back to another video by 12th Istik. In this video, we will be discussing about a very interesting chapter in English for Standard 12, chapter number 1.1 An Astrologer's Day on page number 1 of your English textbook. So, let us begin with the chapter An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. Before beginning with the chapter, let me give you a short introduction about the author R.K. Narayan. R.K. Narayan is one of the best known and famous novelists among the Indian English writer. He was also the author of 14 novels, 5 volumes of short stories. His writings, that is the Malgudi Days, were very famous as an imaginary town. His stories are also characterized as a simple style of humor and writing. This novel, that is An Astrologer's Day, is very interesting and a very short description of a life of the astrologers. His style of writing is also very graceful, also very simple. So, let us begin with An Astrologer's Day, page number 2 of your English textbook. An Astrologer's Day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shell, a square piece of cloth with obtuse mystic chart on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. So when it was the time of an afternoon, so afternoon के टाइम पे एस्ट्रोलॉजर ने उसके सामने जो कुछ भी उसका इक्विपमेंट है, जो कुछ भी उसका सामान है, वो उसके सामने उसने एस्ट्रोलॉजर ने रखा. तो the equipments, the things that the astrologers use are, it is a dozen cowrie shells, it is a type of a shell, फिर a square piece of cloth with obtuse mystic charts. तो astrologers के कुछ charts होते हैं, so which is of a square shape. A notebook, एक notebook था, and a bundle of Palmyra writing. So ये जो सारे equipments है वो एस्ट्रोलॉजर ने उसके सामने रख दिया एंड इट वॉज द टाइम ऑफ आफ्टरनून, दोपहर का टाइम था. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. So, his forehead, so his forehead पे there was a ash, it was a vermilion, ऐसे कुछ marks थे which is of a bright in color. The marks was of orange color and it was also of a yellow color marks. एंड दैट दिस एस्ट्रोलॉजर वो कंटिन्यूसली उसके क्लाइंट्स को, उसके कस्टमर्स को वो सर्च कर रहा था कि उसके पास कोई ना कोई तो वो दिन में आएगा. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which gleamed down his cheek. Even a half-wit eyes would sparkle in such a setting. So उसका एस्ट्रोलॉजर्स डे का जैसे अपीयरेंस था वैसे इट वॉज द अपीयरेंस दैट ही कुड अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स टुवर्ड्स हिम. To crown the effort, he wore a saffron colored turban around his head. तो उसके हेड के ऊपर एक टर्बन था, एक पगड़ी था which is of a bright saffron color. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia sticks. So जो उसके कस्टमर्स थे, जो क्लाइंट्स थे या फिर जो लोग वहाँ से पास हो जाते थे वो एस्ट्रोलॉजर को देख के अट्रैक्ट हो जाते थे. He sat under the bough of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. So astrologer एक बड़े झाड़ के नीचे he used to sit.
It was a remarkable place in many ways. तो टाउन हॉल एक प्लेस था. टाउन हॉल पार्क इज अ प्लेस एंड इन दैट पार्क देर वॉज अ वेरी बिग ट्री. तो वो बड़े झाड़ के नीचे दैट एस्ट्रोलॉजर यूज टू सिट. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. तो ये जो टाउन हॉल पार्क था ये एक ऐसी जगह थी विच वॉज वेरी बिजी. सो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टू द नाइट टाइम वहाँ पे लोग आते ही जाते थे. तो वो जो एरिया था वो बहुत ही क्राउडेड था. नाउ टू पेज नंबर 3. अ वैरायटी ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन वॉज represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth who created enough bin all day to attract the whole town. तो ये जो टाउन हॉल पार्क है उसके वो पार्क के अंदर भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे ट्रेड, बहुत सारे कामकाज वो वहाँ पे चालू होते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मेडिसिन की दुकान है, मैजिशियन है, एक जादूगर है, एक ऑक्शनर है जो ओल्ड क्लॉथ वो सेल करता है. सो ऑल ऑफ दीज वर द शॉप्स दैट वाज इन द टाउन हॉल. नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave him wear a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him. तो वहाँ पर भी एक व्यक्ति था जो ग्राउंड नट दैट इज़ मूंगफली फ्राइड ग्राउंड नट वो बेचता था. बट वो जो व्यक्ति था वो हर एक दिन उसका वो अलग अलग नेम्स रखता था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था. फर्स्ट डे ही यूज्ड टू टेल that he is a Bombay ice cream. फिर दूसरे दिन he used to scream Raja's delicacy. So each and every day वो उसके अलग अलग names रखता था and people also उसके पास बहुत ही गर्दी करके जाते थे. A considerable portion of this crowd dealt before the astrologers too. तो एस्ट्रोलॉजर के पास भी एक थोड़ी बहुत सी भी भीड़ हुआ करती थी. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up the above groundnut heap nearby. Half the enchantment of the people was due to the fact that they did not have the benefit of municipal lighting. तो वो जो एरिया था दैट इज़ टाउन हॉल पार्क, वो एरिया में म्यूनसिपैलिटी के लाइटिंग्स नहीं हुआ करती थी. मतलब स्ट्रीट लाइट्स जो है वो नहीं हुआ करती थी. जो शॉप्स के ही लाइट है वो लाइट से ही वो एस्ट्रोलॉजर उसका काम चलाता था. द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट. One or two had hissing gas light. Some had naked flares stuck on poles. Some were lit up by old cycle lamp, and one or two, like astrologer, managed without light of their own. So किसी के पास तो शॉप के लाइट्स थे, किसी के पास ओल्ड साइकिल लैम्प्स, छोटे छोटे लैम्प्स थे. सो एस्ट्रोलॉजर यही लाइट से उसका काम चलाता था. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. तो वो बहुत ही confusion था क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास उसका खुद का लाइट ही नहीं था. तो it was creating some problem. This suited the astrologer very well for the simple reason that he did not in the least intend to be an astrologer when he began his life. So उसी से ही हम लोग को पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजर, ये जो व्यक्ति है एस्ट्रोलॉजर, उसको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना था. एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ इन द नेक्स्ट मिनट. और उसको इतना भी इन डीप एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं था. ही वॉज एज मच एज स्ट्रेंजर टू द स्टार and were his innocent customers. Yet he said things that pleased and astonished everyone. So as वो एस्ट्रोलॉजर के पास इतना इन डीप नॉलेज नहीं था अबाउट एस्ट्रोलॉजी, फिर भी वो ऐसे कुछ बातें बोल जाता था जो कस्टमर्स को पसंद आते थे, जो कस्टमर्स को लगता है कि हाँ यही हुआ रहेगा हम लोग के साथ उनके लाइफ में.
that there was a matter of study, practice and shrewd guesswork. So ये जो एस्ट्रोलॉजर था वो उसका एक ओन जजमेंट, उसका एक ओन जो गेसवर्क था, उसका खुद का एक अंदाज था, वो बोल देता था. All the same, it was as much as an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. So, शाम होने पर या फिर रात होने पर उसको जो कुछ भी पैसा मिलता था वो उसके घर लेके जाता था. He had left his village without any previous thought or a plan. So काफ़ी वर्ष पहले एक दिन उसने उसका जो गाँव था वो किसी को भी बिना बोल के वो वहाँ से निकल गया. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. So अगर ये एस्ट्रोलॉजर उसके घर पे ही रहता था, उसके वो विलेज पे ही रहता था, तो उसके जो फोर फादर्स थे, उसके जो पहले के जो जनरेशन्स के फादर्स थे, लाइक उसके पापा, उसके दादा, तो जो कुछ भी वो काम करते थे वो ये एस्ट्रोलॉजर ने किया होगा. Namely, tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home. तो अगर वो विलेज में रहता था तो जो उसके एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जो उसके फोर फादर्स काम करते थे, दैट इज़ टिलिंग ऑफ द लैंड, शादी करना, उसका खुद का एक घर बसाना, जो उनका मक्के का खेती है, कॉर्नफील्ड है, उसको संभालना, और जो उनका पुराना जो घर है, एंसेस्ट्रल होम, वो घर को भी संभालना. बट दैट वॉज नॉट टू बी. ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन. सो उसने उसका जो घर छोड़ा वो किसी को भी नहीं बताया और वो चुपके से वो वहाँ से निकल गया. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he had left it a couple of miles 100. So उसका जो उसने जब भी विलेज छोड़ा तभी एकदम दूसरे गांव में वो पहुंचा, which is 100 kilometers far away. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. So ये एक नॉर्मल व्यक्ति है जो विलेज में रहता है, तो ये उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ था उसका गांव छोड़ के एकदम टोटली दूसरे गांव में आना. He had a working analysis of mankind trouble, marriage, money and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. So ये एस्ट्रोलॉजर को एक ऐसा उसको उसके पास एक आइडिया था रिलेटेड टू शादी, दैट इज मैरिज, मनी, पैसा एंड द ह्यूमन टाइज रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स. एंड ये लॉन्ग प्रैक्टिस है, वो उसके जो एस्ट्रोलॉजी के स्किल्स है उसको उसने शार्पन किए. विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड वॉट वॉज रॉन्ग. सो अगर कोई क्लाइंट आता है एस्ट्रोलॉजर के पास तो एस्ट्रोलॉजर को 5 मिनट में ही पता चलता है कि उसके लाइफ में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है. ही चार्ज 3 pies. टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4. ही चार्ज 3 pies per question. Never opened his mouth until the other had spoken for at least 10 minutes. तो वो एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 pies मीन्स 3 rupees चार्ज करता था. बट जो उसका क्लाइंट है वो पहले 10 मिनट्स के लिए उसका जो प्रॉब्लम्स है, उसके क्या लाइफ में उसको क्या सॉल्यूशंस चाहिए, तो वो पहले वो बोलेगा 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद ही एस्ट्रोलॉजर विल ओपन हिज माउथ, which provided him enough stuff for a dozen answer and advice. So 10 मिनट के बाद जब एस्ट्रोलॉजर उसको एडवाइस देता है, उसको सोल्यूशन देता है, तभी एस्ट्रोलॉजर को पता चलता है कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result of your effort. 9 out of 10 were disposed to agree with him, or he questioned, is there any woman in your life, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ करता था वो क्लाइंट के लिए, सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आपके ज़िंदगी में या फिर आपके लाइफ में एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी वुमन रहेगी जो शी इज़ क्रिएटिंग अ ट्रबल. अगर वो क्लोज
वो वुमेन क्लोज भी हो सकती है, या फिर दैट वुमेन कैन बी थोड़ी दूर की रिलेटिव्स, बट दैट वुमेन माइट बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. So the next question the astrologer says कि आपके जो लाइफ में चल रहा है वो आपके बिहेवियर के वजह से होगा. If you change your behavior then that things could have been improved. तो आपको आपका behavior change करना चाहिए. How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impetuous nature and a rough exterior. This endeared him to their heart immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. So ये जो astrologer है उसका nature बहुत ही rough था. So the questions that the astrologer used to ask the customers that there would be any woman in your life, even a distant relatives, या फिर most of your problems are due to the nature. So ये जो questions है वो astrologer उसके client को frequently वो पूछते ही रहता था. The nut vendor blew out his flare and rose to go home. तो astrologer के बाजू में एक vendor है, एक nut vendor है, that is the मूंगफली वाला. तो वो एज इट इज़ द नाइट टाइम, एज इट इज़ अभी बहुत ही रात हो चुकी थी, तो वो वहाँ से उठ के चला गया. दिस वॉज द सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, सिंस इट लेफ्ट हिम in darkness except for a little short of green light which stayed in front from somewhere and touched the ground before him. So as it was the night time, जो नट वेंडर था एस्ट्रोलॉजर के बाजू वाला वो वहाँ से निकल गया. तो ये एक साइन था कि एस्ट्रोलॉजर को भी उसके इक्विपमेंट्स का पैकिंग करना चाहिए और उसको भी अभी घर जाना चाहिए, बिकॉज नाउ इट हैज़ बिकम वेरी डार्क. He picked up his cowrie shell and paralenphlia and was putting them back into the bag when the green shot of light was blotted out. So एस्ट्रोलॉजर ने भी उसके जो इक्विपमेंट्स थे, काउरी शेल्स थे, नोटबुक थे, प्लमायरा राइटिंग्स थे, तो ये सब वो उसके बैग में वो डालने ही वाला था. तभी एट दैट टाइम वो एक जो ग्रीन कलर का लाइट था वो चला गया. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a little while and chat with me." So तभी एक स्ट्रेंजर, एक अननोन व्यक्ति आया और वहाँ पे वो खड़ा हो गया. सो एस्ट्रोलॉजर सेड कि आप थोड़े से परेशान दिखते हो, सो कैन आई हेल्प यू, यू सिट हियर एंड वी विल चैट फॉर सम टाइम्स. तो आप मेरे बाजू में बैठो और हम लोग थोड़ा गप्पे मारेंगे. द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली. सो जो वो स्ट्रेंजर था वो कुछ तो बड़बड़ कर रहा था. द एस्ट्रोलॉजर pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" So astrologer ने वो stranger को invitation दिया, बुलावा दिया कि you sit down next to me and we will chat. So the stranger जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरी व्यक्ति ने astrologer को बोला कि आप खुद को एक astrologer बोलते हो. The astrologer felt challenged and said, tilting the other palm towards the green shot of light, "Yours is a nature." "Oh, stop that," the other said. So astrologer को वो क्वेश्चन बहुत ही चैलेंजिंग लगा, क्योंकि एक अननोन व्यक्ति, एक स्ट्रेंजर व्यक्ति ने उसको चैलेंज किया कि आप खुद को एक एस्ट्रोलॉजर बोलते हो. सो एस्ट्रोलॉजर को वो बहुत ही चैलेंजिंग लगा. एंड द एस्ट्रोलॉजर सेड, "Oh, please stop that. Yes, I am an astrologer. Tell me something worthwhile." Our friend felt pied. "I charge only 3 pies per question, and what you ought to be good enough for your money." At this, the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, "I have some questions to ask." सो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 पाइज, दैट इज़ 3 रुपीज़ 3 अन्नास चार्ज करता हूँ. सो द स्ट्रेंजर ने उसके पास से
वो कॉइन्स निकाले और उसने उसके सामने ऐसे फेंक दिए. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. So stranger ने बोला कि मेरे पास कुछ questions है जिसका मुझे आंसर चाहिए, बट अगर वो आंसर गलत है तो जो मैंने आपको अन्नास दिए वो आप मुझे रिटर्न करो इंटरेस्ट के साथ. सो ये जो बात थी वो स्ट्रेंजर ने एस्ट्रोलॉजर को बोली. इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़. सो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि अगर आपको जो मेरे आंसर्स है वो करेक्ट लगे तो आप 3 अन्ना के अलावा विल यू गिव मी 5 रुपीज़. द स्ट्रेंजर सेड नो, नहीं. और विल यू गिव मी 8 अन्नाज. सो द एस्ट्रोलॉजर सेड कि 5 नो, तो आप मुझे 8 अन्नाज 8 रुपीज़ दोगे. सो दिस एस्ट्रोलॉजर सेड टू द स्ट्रेंजर, ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग. सो द स्ट्रेंजर सेड कि ऑल राइट, आई विल गिव यू 8 अन्नाज, बट अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आप मुझे उसका डबल दो. सेड द स्ट्रेंजर. The pack was accepted after a little further argument. So ये जो डील था कि कितना अन्नाज देने का, अगर आंसर करेक्ट है, अगर आंसर रॉन्ग है. सो दिस आर्ग्यूमेंट, ये एक छोटी सी बहस बिटवीन द एस्ट्रोलॉजर एंड द स्ट्रेंजर, वो पैक एक्सेप्ट हो गई आफ्टर अ लिटिल फाइटिंग एंड आर्ग्यूमेंट. द एस्ट्रोलॉजर सेट अप अ प्रेयर टू हेवन. द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5. The astrologer sent up a prayer to the heaven as the other lit a cheroot. So astrologer ने आंखें बंद करके एक छोटा सा प्रेयर बोला भगवान को, while जो स्ट्रेंजर था उसने एक चीरूट लिट किया. चीरूट इज अ टाइप ऑफ अ सिगरेट, अ सिगार. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. So astrologer ने वो स्ट्रेंजर का जो चेहरा था वो ध्यान से देखा. There was a pause as cars hooted on the road. Gutka drivers soared at his houses and the babbles of the crowd agitated the semi-darkness of the park. तो as it was the night time, अभी रात हो चुकी थी, तो जो रास्ते पे जो कार्स थे वो भी it was being parked. जो हॉर्स के जो ड्राइवर्स थे या फिर हॉर्स राइडर्स थे, जो घोड़ा गाड़ी था, वो भी एक जगह पे इट वॉज बीन पार्क्ड. और रास्ते में क्राउड नहीं था, रास्ते में भीड़ भी नहीं थी लोगों की. द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चीरूट पफिंग आउट सैट देयर रूथलेसली. तो वो जो स्ट्रेंजर था वो एस्ट्रोलॉजर के बाजू में बैठा, उसका जो सिगरेट था वो ऐसे पी रहा था एंड ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू द एस्ट्रोलॉजर. The astrologer felt very uncomfortable. So astrologer को थोड़ा सा uncomfortable महसूस हुआ. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. So astrologer को थोड़ा uncomfortable सा महसूस हुआ. So astrologer said कि ये जो अन्नाज है, ये जो coins है, आप वापस ले लो, ये challenge मैं accept नहीं कर पाऊँगा. I am not used to accept such challenges. It is late for me today. So astrologer also said that अभी बहुत रात हो गई है, तो ये जो आपका चैलेंज है मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आपका जो पैसा है वो आप वापस ले लो. He made preparations to bundle up. So astrologer ने उसका जो और इक्विपमेंट्स थे उसके सामने वो उसने अपने बैग में डालना चालू किए. The other held his wrist and said, "You can't get out of it now. You dragged me while I was passing." So stranger को बहुत ही गुस्सा आया. स्ट्रेंजर ने एस्ट्रोलॉजर का wrist पकड़ा and he said कि अभी आप पीछे नहीं हट सकते. जब मैं यहाँ से पास हो रहा था तभी आपने ही बोला कि sit besides me and we will chit chat. तो अभी आप पीछे नहीं हट सकते. You have to sit and answer my questions. The astrologer shriveled in his grip and his voice shook and became faint. So astrologer को डर लगा, वो थोड़ा कांपने लगा, उसका जो आवाज़ जो था वो भी बहुत ही फेंट, बहुत ही लो हो गया था. Leave me today. I will speak to you tomorrow. So astrologer said कि आज के दिन मुझे छोड़ देना, हम लोग कल वापस मिलेंगे.
The other thrust his palm in his face and said, challenge is challenge, go on. So the stranger said कि अभी आपने challenge accept किया है, so challenge is challenge and now only you have to answer all the questions. I will not leave you. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. So astrologer डर डर के उसने एक सेंटेंस स्ट्रेंजर के सामने रख दिया. सो दैट सेंटेंस इज देयर इज अ वुमन. जो कॉमन क्वेश्चंस है एस्ट्रोलॉजर्स उसके क्लाइंट्स को पूछता था. स्टॉप सेड द अदर, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट. सो द स्ट्रेंजर को गुस्सा आया ये सेंटेंस सुन के कि आपके ज़िंदगी में एक वुमन है. सो स्ट्रेंजर वॉज वेरी एंग्री एंड द स्ट्रेंजर सेड कि स्टॉप, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास मुझे नहीं सुनना है. शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नो. सो जो क्वेश्चन द स्ट्रेंजर आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर वॉज दैट अभी जो मैं सर्च कर रहा हूँ, अभी जो मेरा सर्चिंग चालू है, अभी जो मेरा एक प्रोसेस किसी को ढूंढने का चालू है, उसमें मैं सक्सीड होऊंगा कि नहीं, उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, इसका आप आंसर दो. आंसर दिस एंड गो, अदरवाइज आई विल नॉट लीव यू टिल यू डिसगॉर्ड ऑल योर कॉइन्स. सो द स्ट्रेंजर सेड कि ये जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर दो, जब तक मुझे आंसर नहीं मिलता है तब तक आई विल नॉट लीव यू, और आपके पास जितने भी सारे कॉइन्स है आई विल टेक इट बैक. The astrologer muttered a few incantations and replied. So astrologer उसके मन में ही थोड़े बहुत से magical words बोलने लगा और उसने reply दिया, all right, I will speak, but will you give me a rupee if what I am saying is convincing? Otherwise, I will not open my mouth and you may do what you like. So astrologer said कि ठीक है मैं बोलूँगा, but जो अपना रुपीज़ प्रॉमिस हो गए थे आप मुझे देंगे कि नहीं, अदरवाइज मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा और आपको जो करना है वो करो. सो दिस द एस्ट्रोलॉजर सेड टू द स्ट्रेंजर. आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैंगलिंग द अदर एग्रीड. द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट. सो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग के बाद एस्ट्रोलॉजर ने एक क्वेश्चन रखा to the stranger. So that question was, you were left for dead, am I right? मतलब the stranger he was been left for dead. stranger वो जो stranger था वो मरने ही वाला था but मरा नहीं. Oh, tell me more. So the stranger said कि yes this is right but मुझे और जानकारी चाहिए. A knife has passed through you once, said the astrologer. So astrologer said कि एक knife, एक चाकू, so that knife was passed through you once. Good fellow. He bared his chest to show the scars. What else? So the stranger said कि good मतलब जो कुछ भी astrologer अभी बोल रहा है वो सच है. So that is why the stranger said कि good fellow. सो ये सुन के एस्ट्रोलॉजर को भी थोड़ा हिम्मत आ गया और वो और बोलने लगा. टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड. फिर एस्ट्रोलॉजर सेड कि आसपास में एक वेल था. वेल मतलब एक देयर वाज अ वेल, ओके, और किसी ने तो आपको वो वेल में पुश किया. इज दिस राइट? एंड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, बिकॉज अगर वो आप वेल में गिर जाते थे देन यू कुड हैव बीन डेड. आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल, एक्सक्लेम्ड द अदर ओवरवेलम्ड बाय एंथुजियाज्म. So the stranger said to the astrologer that मैं मरने ही वाला था, बट एक पासर बाय जो वो वेल से गुजर रहा था उसने वो वेल में झाँक के देखा एंड ही सॉ मी एंड ही हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ द वेल. तो अगर वो जो पासर बाय था वो नहीं आता था और वो पीप नहीं करता था, वो झाँक के नहीं देखता था वो वेल में, देन ही कुड हैव बीन
dead. That is the stranger. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. So the stranger said कि वो जो व्यक्ति था जो मुझे मारने के लिए निकला था, तो वो व्यक्ति मुझे कब मिलेगा? In the next world, said answered the astrologer. So astrologer said कि वो जो व्यक्ति है वो आपको अगले जन्म में मिलेगा. He died 4 months ago in a far off town. So astrologer said कि ये जो व्यक्ति है वो 4 महीने पहले वो मर गया. You will never see any more of him. The other ground on hearing it. The astrologer proceeded. Guru Nayak. So the astrologer said कि 4 महीने पहले ये जो व्यक्ति था वो मर गया था, तो अभी आपको वो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा. फिर थोड़ा पॉज होने के बाद एस्ट्रोलॉजर सेड टू द स्ट्रेंजर, गुरु नायक, यू नो माई नेम? द अदर सेड टेकन अबैक. सो जो स्ट्रेंजर ने एस्ट्रोलॉजर को बोला कि आपको मेरा नाम पता है, तो नाउ द नेम ऑफ द स्ट्रेंजर इज गुरु नायक. एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से. सो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, बट अभी लिसन टू मी केयरफुली. अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, दैट यू लिसन वेरी केयरफुली. योर विलेज इज 2 days journey due north to this town. So the astrologer is telling the stranger Guru Nayak कि आपका जो village है, your village is 2 days right from the north side. Take the next train and be gone. So the astrologer is telling Guru Nayak कि जो अगली ट्रेन है, the take down the next train and go to your village. I see once again great danger to your life if you go from home. So astrologer is telling कि now if you are staying in this village, again there will be a danger. आपके life को खतरा हो सकता है. So take the next train and go to your home. He took out a pinch of secret ash and held it to him. Rub on his forehead and go home. Never travel southward again and you will live to 100. So astrologer ने उसके पास जो एक सीक्रेट ऐश थी वो उसने लिया, स्ट्रेंजर दैट इज गुरु नायक के फोरहेड पे वो लगाया और उसने बोला कि साउथवर्ड कभी ट्रैवल मत करो. अगर आप साउथवर्ड ट्रैवल नहीं करोगे तो आप 100 years तक यू विल लिव योर लाइफ. Why should I leave home again? The other said respectively. So the other, that is the stranger, Guru Nayak, said that why should I leave my home? It was only going away now and then to look for him and choke off his life if I met him. He shook his head regretfully. He had escaped my hand. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. So the stranger said कि वो जो व्यक्ति है उसने he wanted to take my life as उसको मुझे मारना था. तो see what happened. He only died 4 months ago. So this is karma, what is happening. If you have wrong intentions, if you behave very wrongly with others, then it can come back to you. So we have to always behave good. So astrologer said that yes, that person had died 4 months ago. He has crushed under a lorry. So astrologer said कि वो जो व्यक्ति था वो लॉरी मतलब एक ट्रक के नीचे वो आ गया और फिर वो मर गया. The other looked gratified to hear it. So astrologer के सामने जो स्ट्रेंजर बैठा था उसको थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया, बिकॉज वो जो स्ट्रेंजर वो गुरु नायक को उसका रिवेंज लेना था. The place was deserted by the time the astrologer picked up his article and put it into the bag. So अभी बहुत रात हो गई थी तो एस्ट्रोलॉजर ने उसके सामने जो उसके थिंग्स उसके वस्तु पड़े थे वो उसने बैग में डालना चालू कर दिए. The green shot was also gone, leaving the place in darkness and silence. तो वो जो छोटा ग्रीन कलर का लाइट था वो भी अभी बंद हो चुका था और वो पूरा एरिया बहुत ही डार्क हो गया था, एज एक छोटी सी भी लाइट भी नहीं थी वहाँ पर.
The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. So वो स्ट्रेंजर गुरु नायक ने उसके जो पास जो सारे बहुत कॉइन्स थे वो एस्ट्रोलॉजर को उसने दिया एंड वो स्ट्रेंजर वहाँ से निकल गया. It was nearly midday when the astrologer reached home. It was nearly midnight when the astrologer reached home. So when the astrologer उसके घर पहुंच गया तभी it was रात के 12:30 बज गए थे. तो इतने रात को वो उसके घर पे पहुंचा. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. सो एस्ट्रोलॉजर की जो वाइफ थी वो एस्ट्रोलॉजर की राह देख रही थी कि कब वो आएगा. तो जब वो आया तभी उसके वाइफ ने उसको पूछा कि आप क्यों लेट हो गए आज. सो दैट वाइफ वांटेड एन आंसर, वांटेड एन एक्सप्लेनेशन व्हाई द एस्ट्रोलॉजर वाज लेट. He flung the coin at her and said, "Count them. One man gave all that." सो जो एस्ट्रोलॉजर के पास जो सारे कॉइन्स थे वो सारे कॉइन्स उसने एस्ट्रोलॉजर ने उसके वाइफ को दिए एंड बोला कि काउंट करो. एक आदमी आया और उसने मुझे उसके सारे कॉइन्स थे वो उसने मेरे को दिया. 12.5 annas, she said, counting. सो उसके वाइफ सेड द एस्ट्रोलॉजर कि दीज कॉइन्स आर 12.5 annas. annas मीन्स कॉइन्स. शी वॉज ओवरजॉयड. वो बहुत ही खुश हो गई थी बिकॉज उसको इतने सारे कॉइन्स मिल गए. दैट इज 12.5 annas. आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो. सो द वाइफ सेड कि दैट वाइफ कैन बाय जैगरी, दैट इज गुड़, एंड कोकोनट टुमारो, दैट इज नारियल. द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मैनी डेज नाउ. सो एस्ट्रोलॉजर का जो एक बच्चा था वो उसको कुछ स्वीट खाना था, बट एज उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे एंड नाउ दे हैव गॉट 12.5 annas. सो एस्ट्रोलॉजर के वाइफ ने बोला कि अभी ये पैसों से मैं जैगरी और कोकोनट खरीदती हूँ क्योंकि अपने बच्चे को कुछ स्वीट खाने का मन हो रहा है. I will prepare some nice stuff for her. The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. So astrologer said कि वो जो व्यक्ति था उसने मुझे चीट किया. He promised to give me 1 rupee. She looked up at him. You looked worried. What's wrong? सो वाइफ ने एस्ट्रोलॉजर को देखा एंड वाइफ ने बोला कि आप बहुत ही परेशान, बहुत ही घबराए हुए लग रहे हो. सो क्या रॉन्ग हुआ है, बोलो आज के दिन क्या हुआ. देन टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7. नथिंग. सो द एस्ट्रोलॉजर सेड कि कुछ नहीं हुआ. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन अ प्लॉय ही टोल्ड हर. सो खाना खाने के बाद एक प्लॉय, दैट इज एक कोर्ट में एस्ट्रोलॉजर और उसकी वाइफ बैठे हुए थे. तो तभी एस्ट्रोलॉजर टोल्ड टू हिज वाइफ दैट डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे. सो एस्ट्रोलॉजर ने उसकी वाइफ को बोला कि एक जो बहुत ही बड़ा टेंशन था मेरे सिर के ऊपर वो आज एकदम निकल गया है, एकदम हल्का हो गया है. आई थॉट आई हैड the blood of a man on my hand all these years. So the astrologer told to his wife कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर के ऊपर मैंने किसी का तो खून किया है. the blood of a man, मैंने किसी का तो खून किया है और वो व्यक्ति is not anymore, is dead. so ये जो एक fear था वो मेरे सिर के ऊपर इतने सारे years था. That was the reason why I ran away from home, settled here, married you. He is alive. So the astrologer said कि मुझे लगा कि मेरे सिर के ऊपर एक किसी को मारने का एक बहुत ही फियर या फिर एक बहुत ही इट इज़ अ थॉट, बट दिस थॉट इज बीन वैनिश्ड. सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने किसी को तो मैंने अनइंटेंशनली मारा था, पर दैट इज़ द रीज़न वाई कि मैंने वो विलेज भी छोड़ा, मैंने ये गांव में सेटल हो गया, देन आपके साथ मैंने शादी किया एंड नाउ ही इज़ लिविंग. सो नाउ दैट पर्सन इज़ अलाइव. वो जो आदमी है वो जिंदा है. शी ग्रैप्स. यू ट्राई टू किल हिम. सो एस्ट्रोलॉजर की वाइफ को ये
ये बहुत ही शॉकिंग लगा एंड द वाइफ सेड कि आपने किसी को तो मारा है या फिर मारने का एटलीस्ट ट्राई किया था. येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर. सो द एस्ट्रोलॉजर सेड कि हाँ, हमारे गांव में जब भी मैं एक सिली यंगस्टर मतलब मैं जब भी एक टीनेजर के एज में था तो वी ड्रैंक गैबल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे. तो हम लोग ने एक दिन दारू पिया. देन वी हैड अ स्मॉल फाइट वन डे. वाई थिंक ऑफ इट नाउ? टाइम टू स्लीप. So the astrologer said to his wife that now as it is late night, so let us sleep now. He said, yawning and stretching himself on the ploy. So the astrologer said कि now it is very late, we have to sleep, so let us sleep, don't think of all of this now. So he was yawning, he stretched himself and he slept on the ploy. So the load on the astrologer's mind was the guilt of killing someone. So astrologer के माइंड में, उसके दिमाग में ये एक बर्डन था कि उसने किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को जब वो टीनेजर के एज में था तभी उसने किल किया था. तो वो जो व्यक्ति थी वो गुरु नायक थी. बट नाउ व्हेन ही रियलाइज्ड दैट गुरु नायक इज स्टिल अलाइव, तो वो जो एक बर्डन था एस्ट्रोलॉजर के सिर के ऊपर वो अभी बिल्कुल भी गया था. That is why the title of this chapter is An Astrologer's Day. So this is it with the chapter An Astrologer's Day 1.1. Hope you all like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel 12th Istik. Until then, stay safe, stay healthy. Soon we will be back with a new video. Thank you. Bye-bye.